Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Well, beta, how are you? Hoping all of you are safe and sound. Let us start our today's lecture. As you all know that we are reading book 2 these days, and we are supposed to cover first 5 chapters from the first part of book 2. It means modern prose, and we have started our 5th lesson, that is on destroying books. Beta, as I have told you earlier that on destroying books has been written by J.C. Squire. It is a comic essay, and the writer, actually, first of all I would like to say something again about J.C. Squire, that he was an eminent, renowned British scholar and writer, and he was also an editor of a literary magazine, London Mercury. Well, in this chapter he has shared some of his experiences of destroying his useless books into a river, and all this he has discussed in a very light mood, just creating a sort of fun for you people. तो बेटी आपने 5th चैप्टर जो है बुक 2 का 5th चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, और इसका तकरीबन 1.5 पेज हम लोग कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, और इसको अभी कंटिन्यू रखना है. तो बेटे देखते हैं कि इसमें क्या था. थोड़ा सा मैं आपको इसका जो समरी जो है, एक ब्रीफ समरी आपको दे देती हूँ, ताकि जिन लोगों का अगर पिछला कोई लेक्चर मिस हुआ है तो वो कंटिन्यूटी में आ जाए. एक्चुअली द लेसन इज़ ऑल अबाउट द एफर्ट्स ऑफ द राइटर टू डिस्ट्रॉय his books. And he also gives us a sort of message that whatever useless material we find, whatever useless stuff we find on our shelves, in our rooms, it is better to destroy it for the sake of getting more place for new and better books, and also to save our heirs from the problem of storing and sorting them out. So similarly he says that once when he was living in Chelsea in a heaven kissing building, some books got accumulated, some minor and inferior quality books got accumulated in his rooms, and the question was how to destroy it. He ultimately decided to put all the books into a sack and throw that sack into the river, and that was a way to destroy those useless books or useless stuff or material. ठीक है बेटी, आपने पीछे ये पढ़ा कि राइटर जो है उसकी एफर्ट क्या है. उसकी एफर्ट ये है कि उसके पास जितनी यूजलेस बुक्स इकट्ठी हो गई हैं, पोइट्री रिलेटेड बुक्स उसके पास बहुत ज़्यादा हैं, इन्फीरियर हैं, माइनर सी बुक, माइनर क्वालिटी की बुक्स हैं, और वो क्या चाहता है कि वो इनसे किस तरह से गेट रिड करे, किस तरह से निजात हासिल करे. उसने अखबार में ये पढ़ा था कि अबाउट 2 million books were sent to the troops by the public, and the main issue was not to support this military, but the main issue was to get rid of those useless materials. तो लोगों का मकसद क्या था, उन्होंने मिलिट्री को, ट्रूप्स को तकरीबन 2 million के करीब जो है वो किताबें डिस्पैच की. मकसद ये था कि इन किताबों से निजात पा ली जाए, जो कि ओल्ड एडिशंस थे, ओल्ड मैगज़ीन्स थे, गाइड्स टू लेक डिस्ट्रिक्ट्स थी. इसके अलावा क्या था उसमें, इसके अलावा उसमें कैलेंडर्स थे, एल्मेनिक्स थी. तो राइटर कहता है कि बेहतर है कि जो ऐसा यूजलेस मटेरियल है उससे निजात हासिल कर ली जाए. तो उसके पास चूँकि ख़ुद अपने फ्लैट में बहुत ज़्यादा पुरानी किताबें जो हैं, मैगज़ीन्स जो हैं वो इकट्ठे हो चुके थे, तो क्वेश्चन जहन में ये था कि इनसे किस तरह से एस्केप किया जाए, निजात पाई जाए. तो अल्टीमेटली डिसाइडेड टू स्टफ देम इनटू अ सैक एंड थ्रो इनटू द रिवर. तो डिसाइड क्या किया कि इनको एक बोरी में डाला जाए और इसको दरिया बुर्द कर दिया जाए, दरिया के सपुर्द कर दिया जाए, दरिया के हवाले कर दिया जाए, ताकि किताबें जो वेस्ट मटेरियल हैं वो अपने अंजाम को पहुंच पाएँ. और ये एडवेंचर बड़ी ब्यूटीफुली उसने, बड़ी आर्टिस्टिकली और इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि it was basically a midnight adventure, and there was a sort of cold nip in the air, and the sky was full of stars, and he continued his journey towards the river. And when he reached near the bridge, what happened? He got frightened, he got terrified to see the travelers moving here and there, and he got frightened because of the feeling of being suspected by those travelers. तो जब वो ब्रिज के पास, चेल्सी रिवर के करीब जो ब्रिज था वहाँ पहुँचा है ताकि किताबों को डिस्ट्रॉय किया जा सके, तो क्या क्या महसूसात थे, उसकी क्या कैफियत थी. वो ये महसूस कर रहा था
कि जो भी ट्रैवलर करीब से इक्का दुक्का गुजर रहे हैं मिडनाइट पे, वो क्या है, शायद वो उसे ही घूर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, यानी उसे ये ख़तरा लाहक था। द पीपल कुड सीज हिम, लोग उसको अरेस्ट कर सकते थे ऑन द प्ली दैट परहैप्स ही हैड अ बेबी और ही हैड सम स्टोलन आइटम्स इन हिज सैक टू डिस्पैच समवेयर। उसे ये खौफ लाहक था कि लोग शायद ये समझेंगे कि मेरी बोरी में कोई बेबी है, कोई बच्चा मैंने अगवा किया है और उसको दरिया बुर्द करने जा रहा हूँ, या कोई मैंने स्टोलन आइटम्स स्वैग्स हैं, स्वैग मीन स्टोलन आइटम्स है मेरे पास, और शायद मैं कहीं किसी घर से चोरी करके आ रहा हूँ और ये सारा सामान जो है वो कहीं लेकर जा रहा हूँ। तो ये सारी फीलिंग्स जो हैं ये आप पढ़ रहे हैं, बड़ी खूबसूरती से इसने बयान की हैं। तो बेटे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट आज इसको कहाँ से स्टार्ट करना है। थोड़ा सा मैंने फीडबैक इसलिए ये दिया है ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे इस चैप्टर के साथ। तो हम लोग बेटे ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स का फर्स्ट पेज कवर कर चुके हैं। इसका जो सेकेंड हाफ है, सेकेंड पेज है, पेज नंबर 17। जी बेटे, इस पे हम देखते हैं कि आप सेकंड पैराग्राफ के तकरीबन आपने 4 लाइंस पढ़ ली थी। कहाँ तक? ड्यूमिनेशन एंड अनकंसर्न्ड, ड्यूमिनेशन एंड अनकंसर्न्ड, और मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग भी, इसके सिनोनिम्स जो हैं वो भी आपके साथ शेयर किए थे। तो लेट अस कंटिन्यू आवर टुडेज लेक्चर। जो नेक्स्ट लाइन है उसे हम देखते हैं कि उसमें मज़ीद हमारे साथ जो है वो राइटर क्या चीज़ें शेयर कर रहा है। जी बेटा, द पेडेस्ट्रियन केम बाय मी विदाउट लुकिंग एट मी। आपने जो लास्ट टाइम छोड़ा है जहाँ पर पैराग्राफ, वहाँ पर क्या था कि ये जनाब जो राइटर है उस ब्रिज तक पहुँच गया है और वो नीचे दरिया में झांक कर देख रहा है, उसकी गहराई को माप रहा है, और वहाँ जो स्वर्ल्स हैं, स्वर्ल्स यानी वहाँ जो सर्कुलर मोशंस ऑफ वाटर है उसको वॉच कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो मीन वाइल अ ट्रेवलर हैपन टू पास नियर हिम, एक जो ट्रैवलर है उसके करीब से गुजरता है। तो उस दौरान क्या फीलिंग थी? द राइटर स्टार्टेड मूविंग अलॉन्ग द wall and giving an impression, a sort of impression to the traveler that perhaps he is engrossed in his deep thoughts। और वो क्या इंप्रेशन दे रहा है कि शायद वो अपनी किसी गहरी सोच में महव है। ठीक है जी, आगे से इसको देख लेते हैं। द पेडेस्ट्रियन केम बाय मी विदाउट लुकिंग एट मी। पेडेस्ट्रियन मीन, पेडेस्ट्रियन होता है पासर बाय। जी बेटे, आज फिर इसके वर्ड्स मीनिंग जो है वो साथ साथ आपने यहाँ से पिक करना है। इसको मैं रिपीट भी कर दूंगी, उर्दू में भी आपको साथ साथ बताती रहूँगी। जी बेटा, आपके वर्ड्स हैं और मीनिंग है। आपके पास वर्ड क्या आ गया? फर्स्ट आपके पास वर्ड है पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN। पेडेस्ट्रियन मीन्स पासर बाय। पासर बाय कौन होगा? राहगीर, करीब से गुजरने वाला। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं अ पर्सन वॉकिंग, अ पर्सन वॉकिंग, वो शख्स जो के करीब चलता हुआ गुजर रहा हो। या यू कैन से अ पर्सन गोइंग ऑन फुट, अ पर्सन गोइंग ऑन फुट। ठीक है जी, ये 3 मीनिंग इसके, आप इसको नोट करिएगा। पेडेस्ट्रियन मीन्स पासर बाय, इट ऑल्सो मीन्स अ पर्सन वॉकिंग एंड अ पर्सन गोइंग ऑन फुट। ठीक है जी, राहगीर इसको कहा जाएगा। द पेडेस्ट्रियन केम बाय मी विदाउट लुकिंग एट मी। तो वो जो ट्रैवलर था जो मेरे करीब से गुजरा था, जिसने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उस दीवार से हट जाऊं ब्रिज की, वो कौन था? He was just a pedestrian, वो एक ट्रैवलर था। एंड he didn't look at me, he did not even look at me, उसने मेरी जानिब देखा भी नहीं। एंड just moved away, और आगे बढ़ गया। It was a tramp who had other things to think about. Tramp, tramp mean vagabond, TRAMP, tramp mean vagabond, vagabond mean a wanderer, wanderer आवारागर्दी करने वाला, बेमकसद घूमने वाला, उसे हम कहेंगे वेगाबॉन्ड या वॉन्डरर कहेंगे। तो क्या था जनाब? ही वॉज बेसिकली अ वेगाबॉन्ड, वो एक वेगाबॉन्ड था, आवारागर्द या बेमकसद घूमने फिरने वाला शख्स था। एंड ही हैड अदर, हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, और उसके जहन में कुछ और चीज़ें भी सोचने के लिए थी। यानी ही वॉज नॉट देयर टू थिंक अबाउट मी और टू कीप एन आई ऑन माई एक्शन, कि वो शख्स जो था, जो ट्रैवलर था, वो मुझे देखने के लिए वहाँ नहीं मौजूद था, बल्कि वो तो किसी और काम के हवाले से वहाँ से गुजर रहा था। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस मीन अ फूल, अ फुलिश। जी बेटा, एन एस मैं यहाँ लिख देती हूँ, एन एस मीन्स अ फुलिश,
अ फुलिश पर्सन। जी बेटा। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस आई स्टॉप्ड अगेन, और अपने आप को अहमक कहते हुए मैं दोबारा से वहाँ पर रुक गया कि दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी नोटिस ऑफ वॉट आई एम डूइंग, तो वाई शुड आई पे अटेंशन टू हिम, कि चूँकि ये जो ट्रैवलर है ये मेरी किसी एक्टिविटी में नज़र रखे हुए नहीं है तो मैं क्यों परेशान हूँ। नाउ फॉर इट, नाउ फॉर इट आपके पास देखें बेटे कॉमर्स के अंदर मौजूद है। नाउ फॉर इट का मतलब नाउ इट इज़ टू बी डन, अल्टीमेटली, फाइनली इट इज़ टू बी डन, यानी मैंने क्या फैसला कर लिया, नाउ फॉर इट, कि अब ये मुझे करना ही है। आई थॉट बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स अपॉन द वाटर्स। कास्ट, टू कास्ट मीन टू थ्रो, फेंकना, डालना, टू कास्ट, टू थ्रो, फेंकना। जी बेटा। जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स अपॉन द वाटर्स, और जैसे ही मैं पानी पर, पानी की सतह पर अपनी वो किताबें फेंकने की कोशिश में था, आई हर्ड अनदर स्टेप, तो मुझे क्या सुनाई दिया, एक और कदमों की चाप सुनाई दी। अ स्लो, और ये कदमों की चाप कैसी है जी, स्लो है, बहुत ही आहिस्ता है। एंड मजर्ड वन, मजर्ड मीन कैलकुलेटेड एंड वेरी केयरफुल, तो आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन ओवर हियर। मजर मीन कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड बड़ी नपी तुली, बड़ी केयरफुली, केयरफुल, बड़ी मोहतात। तो ये जो कदमों की चाप एक और मुसाफिर की सुनाई दे रही है, ये बहुत ही मोहतात सी स्लो बट रेगुलर स्टेप्स है, ठीक है जी। अ स्लो एंड measured one. The next thought came like a blaze of terrible blue lightning across my brain. The next thought came like a blaze. Blaze mean fire. B-L-A-Z-E. Blaze mean fire. आग की तरह, आग, like a fire, like a fire. जी बेटे, मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, इसे आप देखिएगा, like a fire. जी, the next word terrible. Terrible means horrible, खौफनाक. Terrible means horrible, H-O-R-R-I-B-L-E, यानी ख़तरनाक। और lightning क्या होता है, lightning कहा जाता है बिजली की चमक, यानी flash of light, flash of light। जी बेटे, इसका मीनिंग लिख लें, flash of light, बिजली की कड़क और चमक। तो मेरे जहन में ख़याल जो है वो बिजली की एक ख़तरनाक और खौफनाक कड़क की तरह एक ख़याल गूंजा। व्हाट अबाउट द स्प्लैश, ख़याल क्या उसके जहन में आया कि व्हाट अबाउट द स्प्लैश। और स्प्लैश क्या होती है, देखें बेटा, पानी में कोई चीज़ फेंकी जाए तो जो उसके छींटे उड़ते हैं उसको स्प्लैश कहा जाता है, यानी साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग इनटू द वाटर। लिख लीजिएगा, स्प्लैश, SPLASH। स्प्लैश मीन साउंड ऑफ वाटर, साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग इनटू द वाटर, यानी पानी में कोई चीज़ गिरे तो उससे पैदा होने वाली आवाज़, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लैश। यानी एक और ख्याल क्या आया कि व्हाट अबाउट स्प्लैश, कि पानी के जब छींटे उड़ेंगे, व्हेन आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस सैक इनटू द रिवर, तो डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज स्प्लैश, कि जब मैं ये बोरी, किताबों वाली बोरी जो है पानी में फेंकूँगा, डालूँगा, तो भाई बहुत छींटों की आवाज़ आएगी, पानी की आवाज़ आएगी, तो क्या होगा, जो सुनेगा वो मुझे झपट पड़ेगा, मुझ पर झपट पड़ेगा। अ मैन लीनिंग एट मिड नाइट, लीनिंग मीन स्टूपिंग, LEANING, लीनिंग मीन STOOPING, स्टूपिंग का मतलब झुकना, ठीक है जी, नेल्ट, झुकना। A man leaning at midnight over the embankment wall, कि एक आदमी जो कि दरिया के पुश्ते के पास, दरिया का जो पुश्ता, मैंने आपको एम्बैंकमेंट के बारे में बेटे लास्ट लेक्चर में डिटेल बताया था कि एम्बैंकमेंट क्या है बेसिकली। एम्बैंकमेंट मीन्स a concreted or a low stone wall, a low concreted wall to avoid or to prevent
द रिवर फ्रॉम फ्लडिंग दैट पर्टिकुलर एरिया, जिसको दरिया का पुश्ता कहा जाता है। दरिया का जो रिवर बैंक्स होते हैं या कैनाल बैंक्स होते हैं, वहाँ पर इस तरह की लो कंक्रीट वॉल क्यों बनाई जाती है, ताकि वो जो वाटर जो है वो फ्लड्स की शक्ल में ओवरफ्लो ना कर जाए और उस एरिया को, वो एरिया फ्लडेड ना हो जाए। ठीक है जी, उसको हम उर्दू में दरिया का पुश्ता कहा जाता है। मैं यहाँ लिख रही हूँ एम्बैंकमेंट, EMBANKMENT। एम्बैंकमेंट मीन a low concrete wall on the bank of a river, on the bank of a river to prevent it from flooding that area, ठीक है जी। दरिया का पुश्ता यहाँ बंद इसको कहा जाएगा। A low concrete wall on the bank of a river to prevent it from flooding that particular range or area। तो जनाब क्या सोच रहे हैं कि a man leaning at midnight over the embankment, all of a sudden a fling of his arm. Fling, what does it mean? Fling means a movement, a jerk, a twist। तो बेटे आपके पास ये वर्ड्स आ गए, यकीनन आपने लिख लिए। पेडेस्ट्रियन, पासर पाए, अ पर्सन वॉकिंग, अ पर्सन गोइंग ऑन फुट, राहगीर, पैदल चलने वाला। ट्रैम्प, ट्रैम्प मीन वैगाबॉन्ड, वॉन्डरर, यानी रात को बिला मकसद घूमने फिरने वाले आवारागर्द लोग। एनएस, एनएस मीन अ फुलिश, अहमक शख्स। टू कास्ट, टू थ्रो, फेंकना। मेजर मीन कैलकुलेटेड, केयरफुल, मोहतात और नपातुला। ब्लेज लाइक अ फायर, आग की तरह। टेरिबल, हॉरिबल, खौफनाक। लाइटनिंग मीन फ्लैश ऑफ लाइट, यानी बिजली की कड़क या गरज। स्प्लैश, स्प्लैश मीन साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग इनटू द वाटर, पानी में कोई चीज़ गिरने से उड़ने वाले छींटे। लीनिंग मीन्स स्टूपिंग, झुका हुआ होना। एम्बैंकमेंट, अ लो कंक्रीट वॉल ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लडिंग दैट एरिया, कि दरिया के किनारे या नहर के किनारे वो लो वॉल जो कंक्रीट फॉर्म में है, और उसका मकसद क्या है कि पानी जो है ओवरफ्लो ना करे और उस एरिया को फ्लडेड ना कर सके। ठीक है जी। नेक्स्ट मीनिंग बेटे आपको लिख के दे रही हूँ, अब मैं इसको अरेज करती हूँ ताकि मज़ीद जो है आपके साथ वर्ड्स पढ़ने के दौरान शेयर किए जा सकें। वर्ड्स मीनिंग जी बेटा, द वेरी नेक्स्ट सेंटेंस इज a man leaning at midnight over the embankment wall, a sudden fling of his arm. Fling mean F-L-I-N-G, fling mean twist, twist, movement, यानी एक आदमी जो कि रात को, आधी रात के वक्त जो है वो जनाब किसी ब्रिज, किसी दरिया के पुल पे झुका हुआ हो और अचानक ही उसके हाथ में एक हरकत आए, अ ग्रेट स्प्लैश इन द वाटर, और पानी में अचानक ही छींटे उड़ना शुरू हो जाएं, तो श्योरली एंड नॉट विदाउट रीज़न हु एवर वॉज विद इन साइट, साइट मीन व्यू। तो कह रहा है कि कोई वजह नहीं ये सोचने की कि जो भी उस वक्त वहाँ पर जो शख्स भी मौजूद होगा और ये सब चीज़ें देखेगा कि कोई शख्स जो है वो दरिया के पुल पे मौजूद है और जनाब उसके हाथ में मूवमेंट हुई है, हाथों की मूवमेंट हुई है और कोई चीज़ फेंकी गई है दरिया में और छींटे उड़े हैं, तो देयर ऑलवेज सीम्ड टू बी समवन एज समवन हियर would at once rush at me. Rush mean to run, to move, to run, दौड़ना, दौड़ कर आना। कहते तो अचानक ही वो शख्स जो कि चिंटों की आवाज़ सुनेगा वो दौड़ कर मेरी जानिब आएगा। एंड सीज मी, सीज मीन, सीज का मतलब टू कैच, टू अरेस्ट, टू कैच, CATCH, टू अरेस्ट। ठीक है जनाब, नेचुरली ऐसे ही है ना कि अगर कोई और शख्स जो है उसे वॉच करेगा कि ये शख्स जो है कोई चीज़ इसने फेंकी है और बहुत छींटों की बुलंद आवाज़ जो है वो पैदा हुई है, तो यकीनी तौर पे क्या होगा, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द रिएक्शन ऑफ दैट पर्सन, ही वुड डेफिनेटली मूव हरिडली एंड सीज दैट पर्सन।
और यही फीलिंग राइटर की है कि कोई शख्स अगर पानी में उठने वाले छींटे जो है उनकी आवाज़ सुनेगा तो तेज़ी से मेरी जानिब बढ़ेगा और मुझे सीज कर लेगा, मुझे रेस्ट कर लेगा, पकड़ लेगा। ठीक है जी। इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे वुड थिंक इट वॉज अ बेबी। प्रोबेबिलिटी होगा चांसेस, प्रोबेबिलिटी इट मीन्स चांसेस, और हर मुमकिन वो कह रहा चांस है, इम्कान है कि ही वुड फील लाइक दैट इफ़ आई हैव ड्रॉप्ड अ बेबी इनटू द वाटर, कि शायद मैंने किसी बच्चे को पानी में फेंका है, शायद उसकी सोच यही होगी। ठीक है जी। What on earth would be the good of telling the London constable? कांस्टेबल कौन होगा? पुलिस मैन होगा। कह रहे लंदन के पुलिस मैन के पास मुझे ले जाया जाएगा और उस पुलिस वाले को कौन बताएगा कि that I had come out into the cold and come down alone to the river to get rid of a pack of poetry. Get rid of होगा to escape। कहता लंदन के कांस्टेबल को कौन बताएगा, अगर वो मुझे पकड़ लेगा तो कौन बताएगा कि मैं आधी रात को क्यों निकला हूँ, और ये जो पैक ऑफ पोइट्री है, जो पोइट्री बुक्स हैं, इनसे गेट रीड मुझे करना है, इनसे एस्केप करना है, इससे निजात पाने के लिए निकला हूँ। आई कुड ऑलमोस्ट हियर हिज ग्रुफ स्नीरिंग लाफ। ग्रुफ क्या होगा बेटा? GRUFF। ग्रुफ मीन रफ। और स्नीरिंग क्या होगा? स्नीरिंग SNEERING। स्नीरिंग होगा मॉकिंग, तमस्खर आमेज, मजाहिया। कह रहे हैं कि कांस्टेबल क्या करेगा, उसका रिएक्शन होगा कि वो बड़े ही रफ से अंदाज में और बड़े ही तमस्खर आमेज़ अंदाज में मुझे देखकर हंसेगा तो और कहेगा कि टेल टू द मेरीन्स माय सन। देखिए बेटे, आपके पास वर्ड आता है टेल टू द मेरीन्स, मैं यहाँ आपको लिख के दे रही हूँ। टेल टू द मेरीन्स ये एक फ्रेज़ है, ठीक है। इस फ्रेज़ का मतलब क्या है? टू एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ डिसबिलीफ। जी, आपके पास वर्ड आ रहा है बेटा टेल टू द मेरीन्स। टेल टू द मेरीन्स, इट मीन्स इट्स अ फ्रेज which expresses a feeling of disbelief, ठीक है जी। तो कह रहे कि वो कांस्टेबल जो है जब वो मुझे पकड़ेगा तो वो मुझे क्या कहेगा कि यू टेल दैट टू द मेरीन्स माय सन, कि मेरे बेटे जाके किसी और को बेवकूफ़ बनाओ। टू मेक someone else a fool, to make someone else a fool, it also means to make someone a fool, कि जाओ बच्चे किसी और को जाके बेवकूफ़ बनाओ। ये कांस्टेबल का रिएक्शन क्यों होगा कि वो मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेगा कि मैं इस सर्द रात में किताबों से निजात हासिल करने के लिए पहुंचा हूँ। सो फार आई डू नॉट नो हाउ लॉन्ग आई स्ट्रेड अप एंड डाउन। स्ट्रेड अप, स्ट्रेट मीन्स स्ट्रोल, स्ट्रेट मीन्स स्ट्रोल्ड, चहलकदमी करना। टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट, चहलकदमी करना। कह रहा मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कितनी देर तक वहाँ पर आगे पीछे चलता फिरता रहा हूँ उस ब्रिज पे डर की वजह से। इंक्रीजिंगली फियरफुल ऑफ बीइंग वॉच्ड, और मुझे क्या, मैं फियरफुल था, फियरफुल हॉरिफाइड, मैं खौफज़दा था किस चीज़ से? ऑफ बीइंग वॉच्ड, कि कोई मुझे देख ना ले। समनिंग अप माई करेज, समनिंग होगा गैदरिंग, समनिंग SUMMONING, समनिंग मीन गैदरिंग, मस्टरिंग, मुज्तमा करना, जमा करना। तो कहता है जनाब आपको कि समिंग अप माई करेज टू टेक द प्लंज। टू टेक द प्लंज क्या होगा? टू टेक द प्लंज इडियम है आपका। इट मीन्स टू टेक अ डिसीजन, टू टेक अ डिसीजन। और जनाब मैं अपनी हिम्मत जो है मुज्तमा करता रहा, मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा करता रहा कि कुछ फैसला कर पाऊँ। एंड क्वेलिंग फ्रॉम इट एट द लास्ट मोमेंट। क्वेलिंग मतलब ड्रॉइंग बैक, क्वेलिंग मीन्स ड्रॉइंग बैक, पीछे हटना। टू बी अफ्रेड ऑफ, खौफज़दा हो जाना, टू बी अफ्रेड ऑफ, ठीक है जी। ड्रॉइंग बैक, टू बी अफ्रेड ऑफ, खौफज़दा हो जाना, पीछे हटना। तो अब हमें क्या बताया जा रहा है? वो कह रहा है कि वो
वो तमाम जो एक तरीक़ाकार था उसका दरिया में वो किताबें फेंकने का, उससे वो क्विल कर रहा था, उससे वो पीछे हट रहा था, खौफज़दा था। बट नाउ ही डिसाइडेड टू मस्टर अप हिज करेज। लेकिन अब उसने डिसाइड क्या किया है कि वो अपनी जो करेज है, अपनी हिम्मत को मुज्तमा करेगा। ठीक है जनाब। एट द लास्ट मोमेंट, एट लास्ट आई डिड इट। और आखिर क्या हुआ? ही वॉज एबल टू ड्रॉप दैट सैक इन टू द रिवर। उसने ये काम कर डाला। इन द मिडल ऑफ द चेल्सी ब्रिज। और फिर हमें वो चेल्सी ब्रिज के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि चेल्सी ब्रिज जो है उसके मिडल, जहाँ तक वो पहुँच पाया था, वो कैसी जगह थी कि इन द मिडल ऑफ द चेल्सी ब्रिज देयर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस। प्रोजेक्टिंग क्या होगा बेटा? देखिए आपको मज़ीद जो है वो मीनिंग में लिख के देती हूँ। प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्टिंग मीन बल्जिंग, रेज्ड, उभरी हुई, उभरा हुआ नजर आने वाली चीज। प्रोजेक्टिंग मीन्स रेज्ड, बल्जिंग। जी बेटे ये मीनिंग आपने लिख ली। मज़ीद हम पढ़ते हैं इस लेसन के मज़ीद वर्ड्स को पढ़ते हैं और इनके मीनिंग्स लिखते हैं। ये वर्ड्स आपके आगे और यहाँ पर हम लोग इसके मीनिंग लिखते हैं। ठीक है जी। बल्जिंग, आपके पास द वर्ड इज प्रोजेक्टिंग, योर वर्ड इज like projecting. Projecting means bulging. It means bulging. Bulging क्या होगा? Bulging means raised, उभरा हुआ। Circular क्या होगा? In a shape of a circle. In a shape of a circle. ठीक है जी। तो हमें बताया जा रहा है आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस। बेस क्या है? बेस आर द शेड्स, शेड्स हैं वहाँ पर, शेड्स बने हुए हैं विथ सीड्स इन दैम। अच्छा जनाब, ब्रिज के ऊपर हमें क्या बताया जा रहा है कि जो चेल्सी ब्रिज है वहाँ पर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस है, यानी बाहर की जानिब उभरी हुई गोलाई की शक्ल में वहाँ पर शेड्स बने हुए हैं, ताकि लोग, ऐसा होता है ना कि अक्सर जो रिवर्स पे जो ब्रिज होते हैं वहाँ पर कोई ना कोई बेस या कोई ना कोई रेलिंग बनी होती है, ताकि खुशगवार मौसम में लोग जो है वहाँ खड़े होकर दरिया का नज़ारा करें, इंजॉय करें। तो इसी तरह के यहाँ पर भी प्रोजेक्टिंग, बाहर की जानिब उभरी हुई क्या है? सर्कुलर शेड्स, सर्कुलर शेप में शेड्स बने हुए हैं ताकि लोग बैठें, विथ सीट्स इन दैम, और उसमें सीट्स, नशिस्तें भी लोगों के बैठने के लिए मौजूद हैं। इन माई एगनी ऑफ डिसीजन, एगनी, एगनी मीन्स AGONY, एगनी मीन एक्यूट पेन, एक्यूट पेन। तो नहायत ही तकलीफ़ की हालत में, इज़्ज़त की हालत में है वो उस वक्त। ऑफ डिसीजन आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट, मैंने जनाब दरिया का वो पुश्ता वो छोड़ा, एंड हेसेंट स्ट्रेट फॉर द वन ऑफ दीज। हेसेंट, हेसेंट का मतलब क्या होता है? हरिड। हेसेंट, हेसेंट मीन हरिड, तेज़ी से बढ़ना, तेज़ी से जाना। और मैं उन सीट्स के जानिब, वो जो सीट सर्कुलर शेप की बनी हुई हैं, शेडिड हैं, तो कह रहे हैं मैं वहाँ पर उस ब्रिज की जो सीट्स हैं उन सीट्स की जानिब बढ़ा, उनमें से एक की जानिब बढ़ा। आई नेल्ट, आई रीच्ड इट, और मैं वहाँ पर पहुँच गया। आई नेल्ट ऑन द सीट, नेल्ट मीन, नेल्ट क्या होगा? KNELT, नेल्ट मीन स्टूप्ड, झुक जाना। तो जहाँ सीट पे चढ़ के वो नीचे की जानिब झुका है, दरिया का नज़ारा कर रहा है, दरिया को देख रहा है। लुकिंग ओवर हेजिटेटेड अगेन, फिर जनाब ऊपर से ये सब चीज़ें देखते हुए आई फेल्ट रिलक्टेंट, हेजिटेटेड टू फील रिलक्टेंट, हेजिटेटेड इट मीन्स हिचकचाना, टू फील रिलक्टेंट, रिलक्टेंट। ठीक है। और कह रहे मैंने थोड़ी सी हिचकचाहट जो है वो महसूस की। बट आई हैड रीच्ड द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या होता है? टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट मीन्स डिसाइसिव पॉइंट, डिसाइसिव पॉइंट, फैसला कुन मरहला। लेकिन अब तो मैं किसी फैसला कुन मरहले पर पहुंच चुका था। क्या कहता है? वॉट आई थॉट सेवेजली, सेवेजली मीन्स वाइल्डली, सेवेजली मीन्स मैडली, दीवानगी से, वाइल्डली वहशियाना तौर पर, दीवानगी से। तो मैंने खुद से सवाल किया बड़े वहशियाना अंदाज में कि व्हाट,
क्या होगा जब अगर मैं बॉडी फेंक रहा हूँ पानी में तो क्या होगा? अंडर द रेजोल्यूट मास्क, रेजोल्यूट क्या होगा? रेजोल्यूट, रेजोल्यूट मीन डिटरमेंट, डिटरमेंट, पुरअज़्म। और मास्क क्या होगा? मास्क मीन कवरिंग, यानी मैंने कहा कि मैंने तो एक निकाब अपना पुरअज़्म पक्के इरादे वाले शख्स के तौर पर एक निकाब अपने आप पे चढ़ा रखा है, दैट यू शो योर फ्रेंड्स, यानी मैंने एक ऐसा मास्क, ऐसा निकाब जो है अपनी बहादुरी का अपने दोस्तों को दिखाने के लिए चढ़ा रखा है। इज़ देयर रियली अ श्रिंकिंग एंड कंटेम्प्टेबल कॉम्फर्ट? श्रिंकिंग क्या होगा? श्रिंकिंग, ड्रॉइंग बैक, पीछे हटने वाला, एवॉइडिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन। श्रिंकिंग, ड्रॉइंग बैक, एवॉइडिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एवॉइडिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो मैंने अपने आप से कहा कि क्या मैं एक श्रिंकिंग यानी पीछे हटने वाला एक कोई बुज़दिल सा शख्स हूँ, एंड कंटेम्प्टेबल कवर्ड, कंटेम्प्टेबल, कंटेम्प्टेबल क्या मतलब? कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब हेट, हेटेड, कंटेम्प्टेबल इसका मतलब है हेटफुल, काबिले नफ़रत। और कॉवर्ड क्या होता है? कॉवर्ड शाय, कॉवर्ड शाय, सहम जाने वाला, पीछे हटने वाला, बुज़दिल शख्स। अ पर्सन, अगेन अ पर्सन हु अवॉइड्स टू फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अ पर्सन हु अवॉइड डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी बुज़दिल शख्स, अ पर्सन हु अवॉइड टू फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, कह रहा है कि मैंने तो एक बहुत ही बज़ाहिर एक पुरअज़्म नज़र आने वाले शख्स का निकाब जो है वो अपने चेहरे पर चढ़ा रखा है, तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि मैं बुज़दिल शख्स हूँ, मैं कंटेम्प्टेबल हूँ, काबिल हिकारत हूँ कि मैं इतना काम नहीं कर सका कि बुरी जो है किताबों वाला सैक जो है, बैग जो है उसको दरिया में डाल सकूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है इफ़ यू फॉल नाउ, इफ़ यू फॉल नाउ, फॉल मीन ड्रॉ बैक, पीछे हटना, फॉल ड्रॉ बैक। तो मैंने अपने आप से क्या कहा है कि इफ़ यू फॉल नाउ यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन। टू होल्ड वंस हेड अप इसका मतलब क्या है? टू लीड अ रिस्पेक्टेबल लाइफ। टू होल्ड वंस हेड अप मीन्स टू रिस्पेक्ट, टू स्पेंड अ रिस्पेक्टेबल लाइफ, टू स्पेंड अ प्राउड लाइफ, कि काबिल इज़्ज़त ज़िंदगी गुजारना। तो कहते हैं मैंने अपने आप से कहा कि अगर मैं अब पीछे हटा, अगर मैं इस बात से पीछे की जानिब हटा तो यकीनी तौर पर मैं इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहूँगा, मुझे बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो आई हैव टू डू समथिंग टू ड्रॉप दिस सैक इनटू द रिवर। एनी हाउ व्हाट इफ़ यू आर हैंग्ड फॉर इट? हैंग्ड मतलब पुट टू गैलोज, पुट टू गैलोज। मैं यहाँ आपको मज़ीद लिख के देती हूँ बेटी वर्ड्स। जी बेटे, आपका यहाँ वर्ड है हैंग्ड। हैंग्ड मीन टू गो टू गैलोज, फांसी पर चढ़ाना। कहते क्या हो जाएगा, इन किताबें दरिया बुर्द करने की वजह से क्या कोई मुझे फांसी पर चढ़ा देगा? जी बेटे, नेक्स्ट देखिएगा। गुड गॉड, कहते हैं मेरे खुदा क्या होगा? यू वॉर्म, कि मैं तो सिर्फ एक वॉर्म, एक इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों की तरह इंसान हूँ। बेटर मैन देन यू हैव गोन टू द गैलोज। गैलोज मीन स्टेक, गैलोज मीन स्टेक, इट ऑल्सो मीन्स स्कैफोल्ड। कहते हैं मुझसे अच्छे लोग जो हैं, मैं तो एक कीड़े मकोड़े जैसी मेरी हैसियत है, मुझसे अच्छे लोग जो हैं वो फांसी पे चढ़ गए हैं, तख्ते-ए-वार पे उनको चढ़ा दिया गया है, तख्ते-दार पे चढ़ा दिया गया है। विद द करेज ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर क्या होगा? होपलेसनेस। डिस्पेयर मीन होपलेसनेस, होपलेसनेस क्या होगा? मायूसी। तो इस मायूसी के आलम में अपनी करेज को, अपनी ब्रेवरी को, अपनी बहादुरी को बहाल रखते हुए आई टुक अ हीव, टुक अ हीव। हीव क्या होता है? टू लिफ्ट सम हैवी ऑब्जेक्ट्स, टू लिफ्ट सम हैवी ऑब्जेक्ट्स with effort,
विद एफर्ट, कि अपनी कोशिश के साथ किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना, उठाना, टू लिफ्ट सम हैवी ऑब्जेक्ट्स विद एफर्ट। तो मैंने जनाब अपनी पूरी भरपूर एफर्ट, आई टुक अ हीव, मैंने पूरी एफर्ट्स, लिफ्ट एंड थ्रो, इट मीन्स ऑल्सो मीन लिफ्ट एंड थ्रो समथिंग विद एफर्ट, कि मैंने बड़ी एफर्ट के साथ वो जनाब उठाया बोरी को और उसे फेंक दिया। द सैक ड्रॉप्ड शेयर, शेयर क्या होगा, SHER, स्ट्रेट। जनाब वो बोरी के क्या हालात हुए कि वो सीधी पानी के अंदर जा गिरी। ठीक है जी। अ वास्ट स्प्लैश, और बहुत ज़्यादा पानी के छींटों की आवाज़ आई। देन साइलेंस फेल अगेन, और दोबारा से खामोशी तारी हो गई। नो वन केम, कोई वहाँ पर नहीं आया। आई टर्न्ड होम एंड एज आई वॉकड, बेटे हमारे पास चूँकि टाइम जो है, टाइम इज़ फिनिश्ड नाउ, एंड आई मस्ट से दैट वी विल कंटिन्यू द सेम लेसन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो I would like to share a few words with you that beta, hard work definitely is the key to success, and devote all your energies, all your efforts to get something worthy in your life. ठीक है बेटा, take care and stay blessed. Thank you very much. Allah Hafiz.